Hello everyone, welcome to Udan Professional English and Personality Development classes. My name is Ankit Vats. This is my very first video on YouTube. So guys, I would need your support and cooperation so that I can do much better and make people educate and professional on this global language. So I would request you to please support me on this. All right. Okay, so moving forward, first of all, just I would let you know the intent of my YouTube channel. So intent क्या है? That means हमने इस YouTube channel को create क्यों किया है? Why? So यहाँ पे कुछ आपको examples and answer मिल जाएंगे कि क्यों इस YouTube channel को हमने create किया है. Alright? So first point is make people aware about importance of English and communication skills. अभी भी राइट अभी भी मैं कह रहा हूँ दैट मीन्स अभी भी लोगों को ये नहीं पता है कि इंग्लिश की इम्पोर्टेंस क्या है विदाउट इंग्लिश हमारे लाइफ में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं दैट मीन्स जो आपको चाहिए वो नहीं मिल सकता है विदाउट इंग्लिश राइट दिस इज इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के बारे में भी काफ़ी लोगों को अभी तक नहीं पता है कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन होता क्या है कम्युनिकेशन गुड कम्युनिकेशन क्या होती है इससे क्या क्या फ़ायदा हो सकती है आपके लाइफ में क्या क्या चीज़ें आपको मिल सकती है जस्ट टू नो अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड जस्ट टू लर्न communication skills. Alright, so let's talk about importance of English first. So few importance of English is you can find out here. So first of all is like English is only a single language which connects the world. यही यही एकमात्र लैंग्वेज है a lot of languages are there in all around the world, right? But still this is only a single language which connects the world. That is why English is the language of international communication. इसलिए इसको ना इस लैंग्वेज को हम ग्लोबल लैंग्वेज भी बोलते हैं इसीलिए. Second point is English can make you smarter. Wow, ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है. That means if you know English, that means you are smart. So English can make you smarter. Smarter in that sense कि एक language other than your native language which you have been speaking since your childhood. You have learned a new language. So obviously you have something. Exactly. So second point is it's all about smarter. That means English can make you smarter. Third thing is it enhances your personality as well as your skills. That means if you know English, it enhances your personality. Personality को enhance करती है ये और साथ के साथ आपकी skills को भी. That means whatever you have, जो भी चीज़ें आपके पास है skills, knowledge, whatever, अगर आपने इंग्लिश सीख लिया ना तो उसमें एक ये चीज़ जो है चार चांद लगा देती है. इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है हर एक चीज़ आपके पास है. अगर इंग्लिश नहीं है स्टिल कुछ नहीं है फिर आपके पास. आज के ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ. पहले के ज़माने में क्या होता था आई डोंट नो बट अभी के ज़माने में इफ़ यू आर गुड एट इंग्लिश दैट मीन्स यू हैव एवरीथिंग. Okay, so next is it would help you to get the job easily. Yeah, of course. If you know English, just I'll give you an example. Actually एक अभी हाल फिलहाल की बात है. एक बच्चा बीटेक करके मेरे पास आया एंड ही सेड कि भैया एक्चुअली आई वांट टू डू द जॉब. मैंने बोला ग्रेट. व्हाट यू हैव डन? ही सेड बीटेक. मैंने बोला ग्रेट. So I asked him, how's your com skills? Com skills, that is communication skills. He said, it's okay. That means it's so, I would say, right? मैंने कहा it's so. All right. So let me take a test. मैंने टेस्ट लिया and I found that he's not that much fluent in English. And if you are doing BTech, है ना, एक engineering का बंदा अगर इंग्लिश उनकी कमज़ोर है, do you think that he deserves a job? No, not at all. हाँ जॉब मिल सकती है, हो सकता है छोटी कंपनी में कोई जॉब मिल जाएगी, बट एवरी वन वॉन्ट्स टू डू द जॉब इन MNC मल्टीनेशनल कंपनी. एंड मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब यही है कि सबसे पहली चीज़ सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है ना दैट इज़ इंग्लिश. दैट मीन्स you must be good at communication, right? Okay,
सो अगर इंग्लिश आपकी अच्छी है तो यू कैन गेट द जॉब इजली, यस ऑफ कोर्स, एंड दुनिया के किसी भी कोने में आपको जॉब मिल सकती है, आउट ऑफ इंडिया एज वेल। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। जो फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पे, एवरी स्टेट हैज़ देयर ओन नेटिव लैंग्वेजेस। आपको भी पता है कि हर एक स्टेट की अपनी अपनी भाषाएं होती हैं, है ना। अगर आप बिहार की बात करें, बिहार में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? मेन तो हिंदी है, हिंदी को ही मतलब ये डिवाइड किया हुआ हमने कि कोई कहीं मगही बोला जाता है, कहीं भोजपुरी बोलते हैं, कभी मगधी बोलते हैं, फिर मैथिली भी बोलते हैं। सो अ लॉट ऑफ लाइक नेटिव लैंग्वेजेस आर देयर इन अ स्टेट ओनली। एक स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, एक स्टेट में ही इतने सारे लैंग्वेजेस हैं। इफ़ यू गो आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ टाउन, अगर आप हैदराबाद चले जाएँ, बेंगलुरु चले जाएँ, महाराष्ट्र चले जाएँ, वेस्ट बंगाल कोलकाता चले जाएँ, दे हैव देयर ओन नेटिव लैंग्वेजेस। तो क्या आप हिंदी में उनसे बात करेंगे? नो, बिकॉज दे वॉन्ट अंडरस्टैंड हिंदी। तो क्या आप बंगाली में बात करना स्टार्ट कर देंगे? बिकॉज यू डोंट नो बंगाली। तो क्या करेंगे? दिस इज़ अ कॉमन लैंग्वेज, राइट। इंग्लिश ही है एकमात्र लैंग्वेज जो कि कॉमन है। आप उस लैंग्वेज के थ्रू, दैट मीन्स वो लैंग्वेज आप सीख के आप कहीं भी जाके सरवाइव अच्छे से कर सकते हैं। अदरवाइज इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू सरवाइव देयर। जीवन यापन करना वहाँ पे मुश्किल हो जाएगा आपको। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो ये स्टेट और इंडिया की बात की, राइट। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाने की कभी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, हाउ विल यू सर्वाइव? नहीं कर सकते हैं विदाउट इंग्लिश, राइट। ओके, सो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर स्टडी। वाह, ग्रेट। पढ़ाई में भी ये एक बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। कैसे? लेट सपोज आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ्स पढ़ते हैं, आप क्यों ना स्टेट बोर्ड से ही क्यों नहीं पढ़ रहे हो, बट स्टिल दीज सब्जेक्ट्स जो है ना, ये सारे जो भी सब्जेक्ट्स की मैंने नाम लिया, वो सारे मोर देन 50% ना इंग्लिश में ही होते हैं। इफ़ यू आर बैड एट इंग्लिश, क्या होगी प्रॉब्लम, कहाँ होगी? यू वॉन्ट अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी थिंग इन अ प्रॉपर वे, तो वहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपकी। दैट मीन्स इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर स्टडी टू। कहीं पे प्रेजेंटेशन, आप यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जो भी पढ़ रहे हैं बच्चे, कुछ कोई पॉलिटेक्निक कर रहा है, कोई आईटीआई कर रहा है, कोई बी फार्मेसी, कोई एम फार्मेसी, कुछ भी बहुत बहुत सारे जो टेक्निकल डिग्रीज़ हैं वो कर रहे हैं, उनको पता है ये सारी चीज़ें कि वहाँ पे असाइनमेंट असेसमेंट मिलता रहता है हमेशा, राइट, क्वार्टरली और मंथली भी समटाइम्स, और उनको इंग्लिश में ही ए टू जी लिख के लेके जाना होता है एंड प्रेजेंट करना पड़ता है, एंड प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है वहाँ पे। गाइस, प्रेजेंटेशन, डू यू अंडरस्टैंड प्रेजेंटेशन? विदाउट इंग्लिश प्रेजेंटेशन आप हिंदी में देंगे वहाँ पे, नो बडी विल एक्सेप्ट इट, कोई नहीं करेगा एक्सेप्ट। बहुत कुछ है, ठीक है। पढ़ाई करने के बाद आप क्या करेंगे? जॉब के लिए अप्लाई करेंगे कहीं पे। डू यू थिंक दैट कोई भी एचआर या इंटरव्यूअर would ask question in Hindi to you? No, nobody. Nobody, that means nobody. So if you are bad or poor at English, nobody is going to hire you. मान लेता हूँ मैं हर एक चीज़ में आप बुलाए हैं अपने क्लास में, राइट, सब कुछ बढ़िया है। लेट्स सपोज कि आप कंप्यूटर साइंस से गए हैं, आप प्रोग्रामिंग वगैरह बहुत बढ़िया कर लेते हैं, एवरीथिंग यू हैव, राइट, एवरीथिंग, बट एक्सेप्ट इंग्लिश। क्या कंपनी आपको जॉब देगी? नहीं देगी, बिकॉज फर्स्ट राउंड जो होता है ना इंटरव्यू का, दैट इज़ एचआर राउंड, और वो टेक्निकल राउंड नहीं होता है। सो इफ़ यू आर बैड बैड एट इंग्लिश, कुछ नहीं हो सकता आपका। सो दीज आर दी इम्पॉर्टेंस, आई वुड से, राइट, अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस आर देयर। मैंने कुछ ब्रीफ में बताया इस चीज़ को। अब बैक टू द सेकेंड पॉइंट ऑफ मेन मेन्यू चलते हैं। ओके, सो अब इस चीज़ पे बात करते हैं हम दूसरी चीज़ पे, ये इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश की बात की मैंने। नेक्स्ट पॉइंट इज़ विल ट्रेन पीपल ऑन इंग्लिश लैंग्वेज इन अ वेरी सिंपल वे, एज वी हैव डिज़ाइंड दैट कोर्स इन दैट मैनर। इट मीन्स जो आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ होंगे जो आई बी अपलोडिंग ऑन यूट्यूब, उसमें इस तरीके से मैंने डिज़ाइन किया हुआ है यूट्यूब, सॉरी, इस वीडियोज़ को, कि यू वुड गेट एवरीथिंग ईजली, राइट, इन अ मैनर। दैट मीन्स बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगी नेटिव, आई मीन हिंदी लैंग्वेज में। मैं मिक्स करके बोलता हूँ, यहाँ पे भी बोल रहा हूँ जैसे हिंदी एंड इंग्लिश मिक्सड अप करके, बिकॉज इफ़ आई स्पीक इन इंग्लिश ईच एंड एवरी वर्ड, राइट, सो जो लर्नर्स है, जो अभी स्टार्ट किए हैं सीखना, राइट, बिगिनर्स हैं, दे वॉन्ट गेट इट, तो उनके लिए कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज हो जाएंगी।
सो इसलिए मैं मिक्स करके बात कर रहा हूँ. Okay. Second, third point is every lesson would be so effective to understand things easily. Exactly. The same. This is similar to the second one. So इस तरीके से आपको सारे lessons मिलेंगे so that you can understand each and everything easily. Okay. Fourth point. A lot of people want to learn English. Yes. Is it correct? क्या बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं? Yes, of course. बहुत सारे लोग हैं. However, they are so confused. हालाँकि वो काफ़ी मतलब बहुत बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? क्या मुझे कौन-सी किताब पढ़नी चाहिए? क्या मुझे टेंस पढ़ना ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत है? क्या मुझे कहीं यूट्यूब वीडियोज़ मैं देखूँ कुछ या उस तरीके का कोई टीचर मैं ढूँढूँ? तो बहुत सारे क्वेश्चन्स उनके पास होते हैं कि कहाँ से मुझे स्टार्ट करना कहाँ से है? तो मैं आज बताता हूँ आपको स्टार्ट कहीं से नहीं करना है, स्टार्ट आपका हो चुका है एंड जो भी वीडियोज़ आई गारंटी यू, आई एश्योर यू कि जो भी मैं वीडियोज़ अपकमिंग वीडियोज़ जो भी आएँगे डे 1 से लेके जब तक राइट, जस्ट इफ़ यू फॉलो माय rules, if you follow my all the videos whatever I will try to teach you right, please and please उस चीज़ को follow कीजिएगा. I assure you कि you will be a very good speaker one day for sure. This is my guarantee, I assure you. All right, next we start teaching people from the very beginning. Yes, जैसा कि मैंने बताया बिल्कुल स्टार्टिंग से दैट मीन्स समझते हैं अल्फ़ाबेट, समझते हैं अल्फ़ाबेट्स. येस ऑफ कोर्स. अल्फ़ाबेट तो एक एक छोटी इकाई, हर एक चीज़ की एक छोटी इकाई होती है. तो इंग्लिश की भी एक छोटी इकाई अल्फ़ाबेट्स है. इसके अंदर जो लेटर्स आते हैं, लेटर्स सबसे छोटी इकाई होती है वैसे, राइट है ना? लेटर्स होते हैं जिसको कि लाइक हिंदी में क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं या वर्ण कहते हैं या सो अक्षर और वर्ण यही कहते हैं ना, या ऑब्वियसली यही कहते हैं. ठीक है, तो इनको सारे अक्षर दैट मीन्स लेटर्स मिलके फिर वर्ड्स बनाते हैं. एग्जैक्टली मैं आगे आगे आने वाले टाइम पे मैं बताऊंगा ये सारी चीज़ें. एंड दियर प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? जो शब्द हैं उनकी उच्चारण या लेटर्स हैं उनकी उच्चारण आप कैसे करते हैं. सो मोस्ट ऑफ द पीपल दे प्रोनाउंस अ वर्ड और लेटर wrongly, right? So this is very important in language. If you are learning language, you must know how to pronounce it. कैसे उच्चारण करनी चाहिए ये आपको आनी चाहिए. This is very very important, guys. All right, next we'll cover personality development and interview preparation altogether. Wow, great. This is for them जो कि अभी कॉलेज में हैं या फिर कॉलेज पास आउट होने वाले हैं. दे विल गो फॉर अ जॉब या फिर कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन देने वाले हैं. तो उसमें मैं ये कवर करूँगा. अभी नहीं, कवर कवर आने वाले टाइम पे करूँगा मैं. अभी आने वाले कुछ दिनों में तो नहीं करूँगा बट कुछ महीनों बाद करूँगा ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन ऑल टुगेदर. कि हाउ टू लाइक you can improve your personality and how you can face any interview and how you can crack it. So we'll do together. All right, so next we'll teach you public speaking. Yeah, this is more important. So a lot of people they get hesitated while speaking in public, है ना? तो बहुत इसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको. इसका रीज़न क्या है, क्योंकि बचपन से हमने कभी पब्लिकली दैट मीन्स पब्लिक लोगों के बीच में जाके बोला नहीं कभी. और कुछ लोग बोलते हैं दे हैव कॉन्फिडेंस. तो कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ सकती है, कैसे बढ़ा सकते हैं हम विदाउट हेजिटेटिंग. तो ये सारी चीज़ें आपको मैं कवर अप करवाऊँगा आने वाले वीडियोज़ में. ऑलराइट, सो डोंट वरी अबाउट इट बिकॉज नेल्सन मंडेला एक देखिए he was a great man actually. He is a great man, I would say. So he has said a quote, very good quote, motivational quote, that is, it's never too late to do something good. What do you understand by it? That means ऐसा नहीं है कि अगर आपको लग रहा है कि ये काफ़ी लेट हो चुका है, नहीं. इट्स नेवर टू लेट टू डू समथिंग गुड. अगर कुछ अच्छा करने जा रहे हैं ना तो कभी भी अच्छा करने के लिए देर नहीं होता. हाँ, हो सकता है कुछ लोगों को पहले अपॉर्चुनिटी मिली, दे लर्नड इंग्लिश अर्लियर. आपको थोड़ी लेट मिल रही है, आप लेट सीख रहे हैं. नथिंग हार्म इन इट, राइट? सो इट्स नेवर too late to do something good. So that is what we had today in this video, guys. So I hope you must liked it, and thank you so much for watching the video. Please help me to increase subscriber and likes so that I will keep uploading such informative videos for you all. Thanks again. Bye bye. See you in the next video. Take care. Stay safe. Jai Hind.